कि तुम खूबसूरत हो, जली आंखों में काजल डालने से पहले, सूखे चेहरे पर सफेद रंग लगाने से पहले, कानों को झुमके के बोझ तले दबाने से पहले, कमर को 2 इंच छोटे कपड़े में कसने से पहले, उसी कपड़े को अपनी छाती में धंसने से पहले, इन होठों को लाल गुलाबी सुर्खी में बंद करने से पहले उन्हें कहने दो कि तुम खूबसूरत हो. Feminism na, it comes with a huge, right now nowadays it comes with a full backlash because apparently लड़कों को लगने लग गया है कि it's a battle against them, कि everybody has heard the Cinderella story, every girl and every boy has heard the Superman story. Yeah. So he wants to be a Superman, saving the world, being powerful. Rapunzel है, अपने इतने लंबे बाल लेके खड़ी हुई है, जैसे उसको तो पता ही नहीं कि मैं ये बांध के कूद सकती हूँ, प्रिंस ही आके बताएगा कि तू ये बांध के कूद. saying Hi Nayab. Hi Bani. Welcome to season 4 of After Hours, powered by Catch. Very excited to meet you again, I want to say. Of course, again. Again. And I have loved everything that you've done so far. I've been Thank you. following your work. Thank I think you. at this point in time, जिसको भी poetry में interest है, they would have to live under a rock to not know who you are. Thank you. So congratulations on whatever you've accomplished, yeah. Thanks. So young and so self-made. Yes. How does it feel? It feels amazing. Of course, I'm proud of myself. On days I'm high, I'm low, but it definitely feels. I now I can say I know how to feel when you're privileged. Now I can claim that. Now I can never I can't die in garibi now. हाँ. नहीं वो तो आई थिंक इतने शो करने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. No, it's just not about money. It's हाँ. also all kinds of privilege. The power that comes with the love that also that comes with it. Like when you do poetry, na, the power is I think very secondary or piche. Love is the ruling factor and सबसे आगे खड़ा होता है कि जो भी जनता से आपको सबसे ज्यादा मिलता है वो प्रेम है. But it's fantastic. But मुझे एक बात बताओ, इतना जो आप बोल रहे हो आपको love जो मिलता है from the audience, the प्रेम, the sort of adulation that you get. What is it that you think has worked in terms of connecting you with people? मतलब लोगों को आपकी कहानियों में ऐसा क्या दिखता है that they resonate with and they think कि हाँ यार, इसमें मुझे अपनी कोई झलक दिख गई. I think you've answered your question. कोई भी अगर आपसे कोई भी art form में तभी they relate is when they see their own stories, and I think मैं तो चलती फिरती आधी भारत की कहानी तो हूँ ही, most of us are middle class, and the stories that I come from, I think they're very sort of centralized and very common in many ways. For example, मुस्कुराओ ना, वो मुस्कुराओ is the one that was the changing curve also, है ना, जिसके अगले दिन से ही सब पलट गया टाइप्स. मुस्कुराओ से पहले भी जितनी कविताएं थी ना, वो मुझे लगता है वो मेरे ज्यादा कैसे बोलूं माइलस्टोन्स थे, because then it had reached a few people but created a bigger impact. Whereas मुस्कुराओ तो reached everybody because everybody feels someday कि कुछ खो गया है तो मुस्कुराओ, हार गए हो तो nobody tells you to smile when you lose. Nobody tells you to laugh about it if you've lost. And nobody told me. I had to unlearn society rules and learn that it's okay if I failed and it's okay if I lost, because I was so shamed for being a not so intelligent student throughout my school. So I had to unlearn every factor. And then I think Muskurao is the unlearning which people related to. But when you were shamed, you're saying, for not doing well at school, तो ऐसा क्या था कि you were not doing well at school? Was it कि मतलब curriculum अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब क्या चल क्या रहा था? I think पढ़ने के लिए लोगों को लगता है कि मस्तिष्क ब्रेन चाहिए but माहौल भी चाहिए होता है. And my parents were constantly struggling with two things. One is money, of course, middle class, and they both had their separate careers, which of course with children and family it was a lot to balance. And then second, there was a lot of struggle between understanding each other कि एक arranged marriage तो हो जाती है, उसके बाद जो आपसी मन मुटाव है, प्रेम है, वो दुनिया को देखने को नहीं मिलता, आपको या आपके बच्चों को. तो दैट वाज अ कांस्टेंट बैटल. तो जब कैसे बोलते हैं बहुत झगड़े हो रहे होते हैं और आप बैठे हो तो पढ़ाई थोड़ी ना, किताबें थोड़ी, एस्केप के लिए आप किताबों के पास नहीं जाते हो, दोस्तों के पास जाते हो, एनीथिंग दैट टर्न्स योर ब्रेन ऑफ.
मतलब करिकुलम के पास नहीं जाते हो, मैं तो फिर किताबों के पास ही गई eventually. I started reading a lot, doing a lot of stories, but I couldn't score well for sure. But you know, this is such a interesting thing. Interesting तो नहीं, मतलब unfortunately कहेंगे कि कितने घरों में ये होता है हाँ, कि बच्चे ऑलमोस्ट अपने पूरे घर की हाँ, जितनी भी नेगेटिविटी होती है या जितनी भी इनसिक्योरिटी होती है, जैसे लैक ऑफ मनी can be an insecurity, yeah, right? absolutely. Mom and dad not being on the same page Yeah, about yeah. certain things Yes, yes. can, you know, be very very A big traumatizing factor yeah, to your childhood. और वो सारे बच्चे सब absorb कर लेते हैं. आपका सेफ स्पेस होता है जब जहाँ आप पैदा हुए हैं ना, you'll always go back and feel safe, right? Whereas I always claim that मुझे अपने में अच्छा लगता है where I am living now, और जब से I've to learn to create my own bubble, and my defense mechanism is very, like, for example, if somebody walks in here and just, so my reaction is this, because I'm always on the defense as a woman and as somebody who comes from a sort of dysfunctional family, तो वो थोड़ा मुश्किल था to go and be a smarter student. मेरे लिए कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, I won't say, मैं नहीं कर पाई, वो मेरे लिए बहुत टफ था. And hence I was constantly shamed because my parents are very intelligent people. Like they are now as well. Both of them very good with academics. So to come from a setup जहाँ पे आपकी मम्मी एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आपके पापा बैंकर हैं, और आप आपके मैथ नंबर में नहीं आ फेल कर रहे. गए हो. तो it doesn't come with hope कि चलो कोई बात नहीं, there's the opportunity to learn. It comes with shame कि हमारे बच्चे मैथ में फेल हो गए. तो मेरे मम्मी पापा के तो दिल पे लग गई थी बहुत ज्यादा. But do you ever feel like you resent those years of your childhood where you could not figure yourself out? क्योंकि इतना कुछ चल रहा था, जैसे माहौल जो आपने बोला हाँ. was not, let's say, working in your favor. फिर as a result of that studies were suffering, and बच्चे के लिए तो स्कूल ही सब कुछ होता है ना, कि आप अपनी सारी वैलिडेशन या तो घर से डिराइव करते हो या फिर अपने हाँ. दोस्तों से, अपने टीचर से डिराइव करते हो. pretty much till you're a fully grown adult, जब आप काम कर रहे होते हो और आप दूसरे लोगों से मिलते हो, this is your environment. Yeah. But do you ever feel resentful कि यार ये मिला होता तो? No, never. I never regret in life or feel negative emotions as such a lot. One, because of my mother. Throughout our childhood, she was a rock. She's always like, she would teach us very beautiful things to, love about life. She would figure out how to make us happy on low days and high days. Huge credit to her. However, मुझे ऐसा लगता है कि my childhood ना made me a very different person. The kind of empathy that I have in my heart, I think if I had to tell कि मेरा X factor क्या है ना, it's the empathy I carry. और वो मुझ में तभी आ गई थी because I could always see that there was a set of girls who were nosy about me because they had more and I had less, be it the conventional beauty or be it I was clumsy and all. You're very beautiful, by the way. Thank you so much. And hence I wrote a piece about it. Yeah. It's called Tum Khoobsurat Ho. If you've heard it, the whole piece is about loving your flaws. सुनाओ ना एक बारी फिर से. कि तुम खूबसूरत हो, ये बात खुद से 100 दफा कहो. चलते वक्त, रुकते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो. जली आंखों में काजल डालने से पहले, सूखे चेहरे पर सफेद रंग लगाने से पहले, कानों को झुमके के बोझ तले दबाने से पहले, कमर को 2 इंच छोटे कपड़े में कसने से पहले, उसी कपड़े को अपनी छाती में धंसने से पहले, इन होठों को लाल गुलाबी सुर्खी में बंद करने से पहले, उन्हें कहने दो कि तुम खूबसूरत हो. How And it goes on. beautiful. It's beautiful. So, what I'm trying to say is ना that made me a very different person because I never tried. मैं ना बदली नहीं. मेरी माँ ने और मेरी अड़ी ये रही कि मैं बहुत बदली नहीं, कि किसी को लग रहा है कि ये मेरे अंदर ठीक नहीं है तो मैं बदल लेती हूँ. मैं कर ही नहीं पाई वो. And hence that made me value more real things in life. Which is What great. do you think those things are? The things that you value most? That who I am. मैं अपने लिए एक हैशटैग यूज करना चाहती हूँ हमेशा, एंड आई यूज इट समटाइम्स. इट्स कॉल्ड निकनुक. एंड निकनुक
converts itself into neither ki na udhar ki, okay? Okay. Because मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, I never fit in, okay? Now also. पहले तो मैं fit in नहीं करती थी क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत ही क्या बोलते हैं जद्दोजहद मार के हमें कॉन्वेंट में डाल दिया. एंड वी वर नॉट कमिंग फ्रॉम कॉन्वेंट बैकग्राउंड्स, ओके? और जब आप हाई स्कूल में सीधा कॉन्वेंट एंटर करते हो ना, इट्स टफ. It's different. So when you see the student of, though my school wasn't as flashy, but when you see the student of the year kind of movies, now I could tell that this was the Shania of my class and this was this. And in that class, when I see people always looked at me as some loser, somebody who speaks a lot, you know, बहुत बोलती है. So all of these things, na, they were constantly urging me. My teachers constantly looked at me, somebody who's not intelligent. So it was constantly urging me to be a different person, like to fit it into this box कि academy कर लो, दो चोटी बना लो रिबन लगा के, तुम्हारे बाल इतने कर्ली क्यों है, फ्रिजी क्यों है. Few things definitely changed. Now I straighten my hair every time. I still don't have the confidence to just let them be because I've been shamed so much about my hair. I can't even for curly hair. हाँ, for because अब ये तो अब आया है ना, scrunch कर लो, ये कर लो. मम्मियाँ तो एफ्रो बन जाते थे, हम स्कूल चले जाते थे. That was, I think, something that every we didn't have girl learning struggled only. with. तो you're not supposed to. मैंने तो तापसी पन्नू के किसी इंटरव्यू में सुना सौरभ सर वाला कि you're not supposed to comb कर लिया. I'm like, what? Yeah. Why? Like I've not known for 25 years of my life that I'm not supposed to comb my hair. ये तो अवेयरनेस थी. तो मेरे बाल ऐसे स्कूल जाते थे. पर हमारे ज़माने में तो टीनेज में हम सब इतने गंदे लगते थे. अब तो सारे all 15 look at these teenagers, man. Yeah, they look like models. They look like models. I'm almost on the fence about कि they are losing innocence also. And the beauty standards are very unrealistic also. And you can't base your self-confidence on how you look. Beauty standards have always been unrealistic. These girls just know how to dress up, okay? We didn't know. नहीं, but हमें इतना दिखता भी नहीं था ना. सोशल मीडिया भी नहीं था, ये सब भी नहीं था. कहाँ दिखता था हमें? मैगजीन होती थी, उसके अलावा या टीवी पे हम देख लेते थे. I think all of that made me very gutsy. Because जब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था ना, so I had to show up with that hair every day, and I knew I'm going to get made fun of. And then there came a point I started making fun of myself and making friends around. So I've had these journeys. कि मैं पहले एक टाइम था जब मैं खुद का खूब मजाक उड़ा लिया करती थी, and they were like, oh so cool, ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा ब्रो है. My voice कि इसकी तो बड़ी मर्दाना आवाज है. So all of this awareness जो मैं बोलती हूँ ना, it's a husky voice. ये नहीं it's sexy. हाँ, ये sexy नहीं exist कर रहा था गंगानगर में. I can imagine. ये चीजें, the factors that you cannot change, the constant battle was to accept, and I had no other choice. And my ma was there. One time I told my mother that somebody called me, somebody's father, one of my friend's father called me कि ये काले कपड़े तो तेरे पे जचते नहीं है, तू पता नहीं क्या काली है ना, ये गोरी लड़कियों पे अच्छे लगेंगे, something like that. And I came home and I told my mother I was about to bash that guy, you know, कि चल मेरे साथ. But ये बच्चों को क्यों? I don't know. मतलब मुझे बड़ा, मैं बोल रही हूँ ना, I'm constantly also amazed and I also feel sad by the audacity of the world. Yeah, this is very true. And this happens even today on social media. On some days I know how to deal with it, and on some days I don't. What is the worst thing you've read about yourself on social media that really put you down and made you feel like? There's a piece, it's called Papa Perfectionist. It is after that I and my dad worked on our relationship a lot, and I decided to do a piece about him. Because my dad is a perfectionist, and that was a constant battle growing up also, na, कि when your dad is a perfectionist 100%. and तो आपको एक बड़ा pressure रहता है to, and he was very strict also. So he was mostly angry. तो हम live up to ही करते रहते थे कि पापा को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा. तो then eventually in COVID we all broke down and we all क्या shells उतरे ना हमारे, तो हम बेहतर इंसान बने. So I did a piece about my dad, which was my journey with my father. उसमें एक line है कि पापा, I've called my dad कि हमारी पापा से बहुत फटती थी. Okay, I said this, and मेरी मम्मी ने बोला भी कि तू ना बोल, इस लाइन को चेंज करके बोल दे, डर लगता था. I said it doesn't justify my emotion. It has to be, what do we call it, खड़ी बोली, ठीक है, in my language. तो मैंने लिख दिया, and some random meme page took out उतना सा bit. Every time a woman stands in front of a mic at a venue, people think she's trying to do comedy. I'm not even trying to, but women are hell funny, okay? They're good funny. I know so many funny comedians, right? This is so funny because
I think funny is supposed to come from tragedy, and who's seen it More most than is women. who's seen it more than women, right? Yeah. Uh, however, some stupid boys on Instagram thought that I'm trying to do comedy, because the moment I said this line, I laughed about it in the story. They put that 10-second reel. That reel reached about 10-15 million, and everything was a hate comment that please change your career option. Laugh is coming in 4 to 5 business days. I can't stop laughing because I never But ये started. context एक तो था भी नहीं. This is what the whole meme culture is, not like take a thing out of context, put it and make it an agenda. उस पे लिखा हुआ था कि ऐसा लग रहा है कि अपने बाप के फ्यूनरल पे पढ़ रही है, which was 4 days of Wow. not coming out of my room, and more comments about how my dad should have never had me, and how I'm such a bad daughter. वो सब I don't even remember most of the comments exactly, but ये सब था. And again, the audacity, and you see all of these comedy creators abusing on stage, and just because I use the word fatti, okay, and this is the kind of world that we're living in, sort of sadly, that it did break me down for a week or two, and it took me a lot of time to I would imagine so. And it's sad because it was not even on my page. You can easily shut off comments on your own page, but can you do that for the rest of the world? And जो भी लगा रहा है उसको तो व्यूज के लिए, वो तो उसको क्यों तो ही views करेंगे, के लिए उनमें करना है, एम्पैथी हाँ, कहाँ है, वो तो हाँ, एक्सट्रैक्ट करके एडवांटेज ही ले रहे हैं इस बात का. that one did make me sad, but especially because it came from a very different place. yeah, it was a story, and you have all the rights to use any words in a story. You watch movies, there are all kind of languages. कहानी तो अपनी कहानी तो अपनी तरह से ही सुनाएंगे, और कौन सा वो डालने वाले किसने ये वर्ड यूज नहीं किया होगा. And I just wanted to sort of use my emotions right and be real to the story. I'm just saying, and it was a beautiful story about how my dad, coming from an orthodox family, had this journey with me where I was not allowed to wear shorts at home and all. And when I wanted to travel the world, my dad was the first one to tell me, okay, if you need money, take from me. Just go. That's the journey. This was the whole story about. कि कैसे आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ग्रो करते हैं when you the grow. coming of age of a relationship almost, yeah. हाँ. So that was sad. But when your parents, let's say, hear your interviews, okay, Yeah. or hear your poetry, Yeah. तो उनको ऐसे लगता है कि मतलब हमारे फैमिली सीक्रेट्स की स्पिल कर रही है, जाके बोल रही है फैमिली डिसफंक्शनल है. उनको ऐसे लगता नहीं है कि मतलब नया बाय. नहीं, आई थिंक वंस यू कितनी अच्छी बात बोली थी ना कि आई रिमेम्बर कॉमेडी कपिल शर्मा में जब जाकिर कुशा उपमन्यु all these people, right? So he said your parents don't sort of hate what you want to do, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं ना. जाकिर said and then उपमन्यु said कि नहीं, मुझे लगता है वो लालची है. I think once you start making money, your parents realize that what she's doing has some value to it, because somehow हमने worth को money से connect कर दिया है, जो नहीं होना चाहिए. बट सोशली जो आपकी वर्थ है, वो आप कितना पैसा कमा रहे हो, उससे बहुत मैटर करती है ना. उससे बहुत मैटर करती है. और आई थिंक ऑल दीज सीक्रेट्स ना डू लीड टू रिलेटेबिलिटी. these should not be the secrets. अब वो होता है ना कि we come from a country where we can piss in the public but not kiss in the public. So we're not affectionate about love, we're not affectionate publicly, but we can't show ये सीक्रेट है. ये सीक्रेट नहीं होनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप बात करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि हम सब में कितनी सिमिलैरिटीज हैं. बिकॉज व्हेन आई से इट इन माय शो एंड व्हेन आई टेल कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, कि जरूरी नहीं है ना कि हर 2 इंसान जिनकी अरेंज मैरिज हो गई वो प्रेम में पड़ेंगे ही पड़ेंगे. एक तो बेस्ट केस सिनेरियो आपने, मतलब आप विवाह पिक्चर पे तो बेस नहीं कर सकते ये डिसीजन मेकिंग. एग्जैक्टली. आपने एक मूवी देखी या आपने देखा कि ये चलते आ रहा है. Now I want to sit here and ask the rest of the country and the rest of the world that are all of your parents in the kind of magical love that हम साथ हैं कि बाबूजी और बीजी थे या वीर ज़ारा के थे, और are you just, or do you feel the same as I feel? That's my point. That they're in survival mode. So many parents are in survival mode. I just want to ask कि क्या तुम्हारा भी डिफेंस मैकेनिज्म है? क्या मेरी कविताएं बात करती हैं तुमसे, या मैं अकेली खड़ी हूँ यहाँ पे भी, ना इधर की ना उधर की. But when I perform, I can see it, and we see it around us. I come from a very small town, and my mother used to
have our own school and run it. I remember, and just be all female teachers staff. And the moment those teachers would enter the school, they would start feeling free. वो जो feeling होती है ना, घर से आजाद हो गए, कि ऐसे लगता है कि वो केज से निकल के आए हैं. कितना सो अनफॉर्चुनेट यार, ये हमारे देश की औरतों, मतलब दुनिया भर की औरतों के साथ क्यों होता है ये? क्या प्रॉब्लम क्या है लोगों की? I think it's is it that they want control, like because just I mean, I honestly feel men do not want control. Okay, let me tell you, it's just the social pressure. I have seen so much worse happen also because of the small town situation. But in my life, I've met the most wonderful men. I'm dating one. I'm engaged to one. I don't think Ayush has ever asked control of me. Never. Rather, everybody would be happy to know that we have a splitwise group, okay? It's from the past 8-9 years. He's never wanted to control. And if he was forced to, I think it would develop on him. Neither does his father. Nor does anybody in his family I've seen. I have my friends who are married now. किसी के पति को control नहीं चाहिए. I think it was the conditioning. But yeah, I don't think it's gone. Yeah, of course. है अभी भी. हाँ. मतलब बहुत ही subliminal way में है. You know, but वो patriarchy मुझे ऐसा लगता है runs. वो बहुत deep rooted है ना. Yeah, it's almost like it's under your skin. You constantly keep breaking chains. Yeah. Constantly keep breaking these chains. Like it's in the small things. It's in nomenclature. It's in how we speak. Yes. कि जैसे मैं अपनी टीम को ये बोल रही थी, so many times, you know, when we are doing sort of brainstorming कि I'm in the business of like building, selling apartments, let's say, तो हम बोलेंगे कि अच्छा buyer है, आपको दिखाना है, the image you want to project is that you know, a person who is strong and wealthy is one who is the apt buyer for let's say this product, okay? और उसकी imagery creative agencies की या समटाइम्स आपकी खुद की टीम्स होती हैं कि एक आदमी यॉट पे खड़ा है या आदमी प्राइवेट जेट में बैठा है, ठीक है? तो मेरा हमेशा उनको फीडबैक ये रहता है कि आदमी क्यों बैठा है, या आपको ऐसे, तो मैं अपनी एड्स में जो प्राइवेट जेट में मैंने लड़की बिठाई बिकॉज आई सेड अगर आप देखोगे नहीं तो आप सोचोगे नहीं उस डायरेक्शन में. एंड यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बियॉन्ड अ पॉइंट, ऑफ कोर्स, you know, once you reach a stage where you know that, you know, people understand that your product is good, there's a certain amount of responsibility you have to messaging, to actually saying that, okay, if I am going to, you know, kind of create a situation that makes you think, then I want you to think differently. You know, I want you to, नजरिए, हाँ, वही तो, नजरिया बदलेगा तो ही नजारे बदलेंगे ना. तो आप दिखाओ विमेन को पोजीशंस में जो पावरफुल है, तो ही लोग सोचेंगे कि हाँ ये भी पॉसिबल है, तो विमेन भी सोचेंगे ये वी कैन ड्रीम दिस बिग, राइट? तो उनका जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि फैमिली इज के मम्मी पापा 2 बच्चे. मैंने कहा क्यों भाई, क्यों फैमिली यही है तुम्हारी? किसी को नहीं बच्चे करने, वो फैमिली नहीं है. किसी का पार्टनर नहीं है और वो अपने भाई बहन के साथ रह रहे, वो फैमिली नहीं है. कोई सिंगल मदर अपने बच्चे के साथ रह रही है, वो फैमिली नहीं है. तो मैं यही क्यों दिखता है इस फैमिली? तो यू नो व्हाट वी सी अराउंड अस, बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है. मोस्टली ना व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी और फेमिनिज्म ना, इट कम्स विद अ huge, right now nowadays it comes with a full backlash because apparently लड़कों को लगने लग गया है कि it's a battle against them, whereas it's not even a battle. I think it helps them. हाँ. आपको जो आप जिस बोझ के नीचे मरी जा रहे हो, हम बोल रहे हैं आपको लेने की जरूरत नहीं है. Number one, exactly my point. Number two, it's not even a battle. It's equal sharing of love. Number one, ये उस बारे में है ही नहीं. It's just, it's about opportunity. It's about equal share. And then I remember somebody I've heard recently say कि जो औरतों के पास privilege है, ये जो बैठने को मिल जाता है, ये सीट्स और जो कैटेगरीज है, जो रिजर्वेशन है, then these are the constant points that you feel. See, once you start giving equality, you can always, like, you know, everybody can let go of the reservation and everything. Also the reservations are very physiological, not psychological. आप मतलब पहले बेस लेवल पे बात करते हैं, है ना, कि घर में आप तमीज से बात करो अपने घर की औरतों से, फिर हम चलो बात करेंगे रिजर्वेशन. आप पहले उस लेवल तक तो लेके आओ.
कोविड के अंदर जब हम सब फंसे हुए थे ना, so मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया को तो बड़ा एडवोकेट कर रही हूँ, कविताएं लिख रही हूँ इन सब विषयों पे। तो हम फंस गए, और मेरा भाई और मुझे, बिकॉज मेड्स और हाउस हेल्प और कुछ भी नहीं था, और हम, मेरी मम्मी ही हमको फीड करती आई हैं बचपन से। और मम्मी तब शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड बैक इन द डे, शी हैड हर गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी, सो शी वाज ऑन रेस्ट। एंड प्लस हम लोग रहते हैं हॉस्टल्स में, तो मेरी मम्मी का जो वो कैपेसिटी है ना ऑफ 4 लोगों का लोड, वो, और शी वाज एनीवे अप टू 2 पीपल, मम्मी पापा ही थे। करेक्ट। तो ऊपर से शी इज कम बैक, तो हमें वी हैड टू डिवाइड इट। ना मुझे खाना बनाना आता है, ना मेरे भाई को। हम यूट्यूब से देख के कर रहे हैं, एंड द बैटल नाउ इज कि मैं सब्जी तभी बनाऊंगी और तू रोटी बनाएगा। ठीक है। अच्छा, उसको लगता है कि वो देख रहा है कि बाकियों की तो मम्मी बना दे रही है या किसी की बड़ी बहन बना दे रही है, कोई भी उसका दोस्त अपेरेंटली किचन में नहीं है, या उसको मे बी बाकी उसके दोस्त ज्यादा प्रिविलेज्ड है कंपेयर टू हिम, जिनसे भी वो फोन पे बात कर रहा है या स्टोरीज देख रहा है, जो भी जहाँ से भी उसका नजरिया बन रहा है। तो एक दिन वो रोटी बना रहा है, एंड दिस मेड मी क्राई दैट डे, एंड नाउ इट्स वेरी फनी। एंड वो बेल रहा है रोटी और उसको गुस्सा आ रहा है कि ये करवा रही है, एंड आई हैव ऑलवेज बीन पावरफुल इन माय होम बिकॉज ऑफ माय मदर। सो वो बेल रहा है और वो कह रहा है फेमिनिस्ट कहीं की, so he's using the word as a गाली, okay, and I'm like मेरा अपना भाई, मैंने कहा पहले तो तू रुक, and then I told him generally, you know, and then by the end of the conversation he was crying, and he had to understand कि जब मैं छोटी थी, या जब मैं 9th क्लास में थी और मैं ट्यूशन जाती थी, तो वन टाइम देयर वाज अ बॉय हु लिटरली चूटी काट के वो बाइक पे जो लड़के निकल जाते हैं, इट हैपेंड, आई क्राइड ऑन द रोड, और मैंने घर पे आके किसी को बताया नहीं, क्योंकि अगर मैं बता दूंगी तो हो सकता है कल से मुझे ट्यूशन ना जाने दें, या एक गार्ड मेरे साथ पापा या भाई के रूप में जाए, वो सब मुझे नहीं चाहिए था। व्हेन आई डिडंट वांट टू सॉर्ट ऑफ फॉल इन लव विद अ गाय, लाइक आई वाज नॉट इन लव एंड ही वाज, आई वाज slut shamed and not him, you know, so I had to share so much with my brother for him to not use the word as an abuse and think कि ये privilege मांग रही है इस word के थ्रू। मैं privilege नहीं मांग रही हूँ, और मैं मांगना चाहती ही नहीं हूँ। अपना खुद का वो, ये वैसी बात है कि मैंने किसी को पैसे उधार दिए और वो दे नहीं रहा है ना, वो जो awkwardness होती है ना, अपना ही पैसा वापस मांगने की, I agree. ये वो फीलिंग है, Completely agree. ये वो फीलिंग है कि मेरा ही है और मैं क्यों मांगू तुझसे। हाँ, तू कौन है? ये मैं भी बोर्ड रूम्स में ऐसी फील करती हूँ। ये वो फीलिंग है कि तुम मुझसे मेरी चीज मुझे नहीं लौटा रहे, सोच रहे हैं कि it's a very so it's that, so I had to sort of fight a lot at home, but I think my situation at home is much better. Of course financial stability helps. What would you say to young girls about what it feels like to make money or to be the person in a home where, as the daughter, you are the most recognizable face, let's say, in the generations that have come before you? I think, Yes. right? Like when your parents walk with you, तो देखते हैं कोई लोग आते होंगे, वो बोलेंगे आपको कि अरे मैंने ये सुना था, can I take a picture with you, etc etc. ये तो होता ही है। आप रेखा जैसे प्लेटफॉर्म्स में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली लोग तो आ ही रहे हैं, तो how does that make you feel? मैं रेखता में नहीं गई अभी तक, साहित्य में गई। हाँ, but you're right that we're going to platforms. I think it's very important for it should not be. I do have a piece about it as well. It should not be, okay? On a logical level, आपको अपनी बेटियों पे बिना किसी अचीवमेंट के नाज और विश्वास दोनों होना चाहिए। बट राइट नाउ अभी मुझे लगता है वो स्टेज चल रही है वेर यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ जनरेशन वाइज, सो इट्स लिटरली ऑन अस। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी दादियाँ थी, मोस्ट ऑफ देम वर हाउसवाइफ्स, ठीक है, दादी नानी, तो उनके रोल्स बड़े स्टीरियोटिपिकली डिवाइडेड थे कि घर आपका, बाहर पति का। फिर हमारी माँओं ने एक जंग लड़ी कि हम तो काम भी करेंगे, तो वो वहाँ पे उनकी वो जंग जीती कि जाओ काम कर लो और घर का भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने बैलेंस किया, जैसे मेरी मम्मी ने तो घर भी और बाहर भी देखा। फिर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वो जंग लड़ी, तो हमें ये प्रिविलेज मिली कि शायद हम घर पे हेल्प रख सकते हैं और बाहर का कर सकते हैं, और जो थोड़ा बहुत बच जाएगा पर वो हमें करना है, ठीक है, जो हेल्प नहीं करेगी। करेक्ट। और हेल्प को मैनेज भी आप ही करोगे। और हेल्प को मैनेज भी आप ही करोगे, बिकॉज़ फीमेल्स आर बेटर एट इट, ठीक है। हाउएवर, तो मुझे लगता है नाउ द नेक्स्ट बैटल इज दैट ये प्रूव ही किया ना माओ ने कि बाहर भी संभाल लिया और घर भी संभाल लिया, अब हमें भी समहाउ प्रूव ही करना है कि वी आर यू नो वेरी गुड इन द बाहर वाला डिपार्टमेंट, एंड ऑल्सो men have to prove that they're very good in managing also, so there is a balance
कि दोनों कर सकते हैं. Like with Ayush and Aina, there was a deal that every time, so when we travel, we book Airbnbs or wherever we are staying. So I never go to the kitchen alone. Later on, we can figure out कि कौन जा रहा है, but he should know as much as to cook as much as I do. More or less, दोनों को इतना तो आना चाहिए ना कि किसी दिन भूख लगी और खाना ना हो तो एक दूसरे की शक्ल ना नहीं, and दिखे. if one person is sick, the other should be able हाँ. to serve. ना मतलब you Yeah, should be able 100%. to. We don't have these gender roles yet. Yeah. I would love to cook a meal for him and he would love to cook a meal for me. I'm not trying to make him ये जो होता है ना कि तो आदमी औरत बन के नहीं. I'm just trying to sort of not have any gender roles. Divided on the basis of my sex Yeah. and not who I am or मतलब what I that like. that is the utopian world we all want to Yeah. live in, I think. But I think it's आज वो कहते हैं ना अपने घर से बदलाव आपके अपने घर से शुरू होता Yeah, है. I agree. And you know the funny thing is that हम realize नहीं करते कि हम अपनी ना छोटी छोटी चीजों में अगर वोकैबुलरी से भी हटा दे हाँ. तो आगे के या हमारे आसपास के लोग भी अब अब्जॉर्ब करना छोड़ या देंगे. जो वो बच्चों की बुक्स में होता है ना जो अभी इतना ये वायरल हो रहा था बीच में कि we've shown a black person on the definition of ugly in the pictures. Yeah. That's horrible. And we skin didn't. color सिर्फ Skin pink color. होता है. पिंक होता है, बेज नहीं दिखाते उसमें, all the skin colors नहीं दिखाते. Yeah. Skin क्या दिखाते हैं? The lighter, Yeah. pinkish, whitish sort of version. वो Yeah. वो that is not skin color. It's all the. Yeah. So ये सब, as you said, vocabulary, the picturization, when you teach children कि ugly क्या है या सिखाने ही क्यों है ugly? नहीं, और जैसे छोटी सी बात है ना कि कस्टमर इज किंग. हाँ. राइट. Not कोई queen. बोलता है कि अरे मैंने अभी किसी का इंटरव्यू मैंने देखा, वो बोल रहे अरे मैं चूड़ियाँ थोड़ी पहनी हुई है. ओह. आपको क्यों लगता है कि चूड़ियाँ पहनना is चूड़ियाँ बहुत powerful. पहनना इज नॉट पावरफुल? हाँ. आपको क्यों लगता है कि जिसने चूड़ियाँ पहनी हुई है मतलब उसकी बस की कुछ नहीं है? ये कितनी खराब बात है. यू नो, दिस इज सच अ हॉरिबल थिंग टू से कि यू नो कोई आदमी बोल रहा है अपनी अल्फानेस हाँ. बताने के लिए कि अरे यू नो मुझे कैसे थ्रेटन किया, I मैंने had चूड़ियाँ a- थोड़ी पहनी हुई है. I had a very wild thought about bangles once. I don't know how it's going to go on social media. I really don't know. Which is I've never put it across. हाँ. It was about that maybe imagine when there was not this civilization. तो एक जेंडर को समझ आ गया होगा कि दूसरे जेंडर को सिर्फ आप सरवाइव करने के लिए आपसे स्पर्म्स चाहिए. द मेजर 9-month रोल इज हर्स, है ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पे औरतों ने इतना जुल्म किया होगा कि आदमी पेट्रियार्की को डिफेंस की तरह लेके उठे होंगे, ठीक है, और बांध दिया होगा सारी औरतों को, ठीक है, कि ये तो बहुत ही जुल्मी है, ठीक है. इट्स जस्ट अ वाइल्ड थॉट. ओके, बांध दिया होगा तो यानी कि चेन्स लगा दी होंगी और फिर बेचारी चेन्ड होती भूल गई होंगी अक्रॉस जनरेशंस की हम पावरफुल है ना. और फिर धीरे धीरे जब उनको किसी ने याद कराया होगा तो उन्होंने दे वुड हैव लाइक यू नो द थॉट ऑफ ब्रेकिंग दोस चेन्स वर बैंगल्स एंड पायल जो आप पहनते हो. तो जब वो निकली होंगी ना तो उन्होंने उनको तमगों की तरह पहना होगा लाइक मेडल्स. तो बेसिकली इन माय हेड बैंगल्स आर अ रिमाइंडर दैट यू हैव टू बी, ये वापस नहीं जानी चाहिए. हाँ, मतलब of course, and it's just a very wild no, thought. why नहीं? Because actually, if you think about it, वो जो हम बोलते हैं ना, there these markers of marriage, Yeah. right? That only women wear. हाँ. आदमी तो नहीं हाँ. पहन रहे सिंदूर, आदमी तो नहीं पहन रहे हाँ. चूड़ा, वो तो घूम रहे हैं ऐसे, right? तो बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस ये है कि आप क्यों बांध रहे हो किसी को इस रिचुअल से. और बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि वो अपने मन से कर रही हैं. हाँ. मुझे ऐसे लगता है कि कोई मन से नहीं करता, हम सब कंडीशनिंग से करते हैं. कंडीशनिंग से. क्योंकि आप इतने सारे बैंगल्स पहन के रोज सोना चाहोगे 6 महीने के लिए हर चीज के साथ, ये मन तो शायद ना हो. ये मन के साथ साथ ना सबकी आस्तिकता भी बन गई है. व्हाट इज आस्तिकता? बेसिकली आप जैसे आस्था जो आप ऊपर वाले से करते हैं, तो ये जो वो आपका मैरिज के साथ जो कैसे बोलते हैं, जो आप प्रे करते हो, यू नो, टू कीप एवरीथिंग सेफ एंड यू नो कीप अस हैप्पी. तो वो बन गया कि आप इसको सिर्फ स्पिरिचुअली भी पहन रहे हैं, क्योंकि आपने जब उसको पहना है तो पूजा होती है. जब आप चूड़ा पहनते हैं ना, आप उतारते हैं तो पूजा होती है. एंड बोथ द टाइम्स यू प्रे टू द गॉड दैट यू नो कीप योर फैमिली हस्बैंड सेफ, हेल्दी, लॉन्ग लाइफ. तो वो आस्तिकता बन जाती है जब उसमें इतना सब कुछ जुड़ गए. सो इट इज नॉट जस्ट एन एक्सेसरी, राइट? तो आप
डरते भी हैं, आपको पसंद भी है, उसमें बहुत सारे इमोशंस जुड़ गए हैं। या फिर जैसे मेरी एक दोस्त है, वो आई रिमेंबर वी वर इन 9th and 10th, शी वांटेड टू जस्ट गेट मैरिड क्योंकि उसको चूड़ा पहनना। शी यूज्ड टू लव इट एंड शी वोर इट फॉर 1.5 years ऑफ मैरिज। तो इट फॉर पीपल इट बिकम्स सिंबलिज्म बन जाता है। बट यू आर वेरी वेरी राइट कि ओनली वुमेन है। आप कभी नहीं सोचोगे कि आदमी को शादी करनी है क्योंकि उसको चूड़ा पहनना है और सूट पहनना है। हाँ, क्योंकि हमने एक्चुअली ना we've sold the dream of marriage to Yeah. a woman Yeah. and we've sold the dream of success to a man. हाँ, तो हमने लड़कियों को total बोला different story. हाँ कि आपकी लाइफ शुरू तब होती है और आपके मजे तब शुरू होते हैं जब आपकी शादी होती है। और हमने आदमियों को बोला कि जब आप पैसे बहुत कमाते हो और नाम कमाते हो तो आपका योर लाइफ स्टार्ट्स देन, है ना। तो व्हाट द लिटिल गर्ल इज आल्सो ड्रीमिंग ऑफ is that white knight who comes for me. Her dream is the white knight. And this is what my show is about. Man's dream is to be the white knight. तो वो तो अपनी लाइफ के कंट्रोल के बारे में तो कभी सोच ही नहीं रही है क्योंकि हमने वो बेचा ही नहीं है अपनी लड़कियों को हमने बेचा ही नहीं। Which is why my show is called Rajkumari ना, कि everybody has heard the Cinderella story, every girl and every boy has heard the Superman story. Yeah. So he wants to be a Superman, saving the world, being powerful. Like at best कि सारी लड़कियां उसको देख रही हैं and want to be his love affair partner, but he has to save. Yeah. He has to be powerful. He has to be the savior. And the women has to be like, the damsel in distresses. And वो आएगी, Rapunzel है, अपने लंबे बाल लेके खड़ी हुई है, जैसे उसको तो पता ही नहीं कि मैं ये बांध के कूद सकती हूँ, प्रिंस ही आके बताएगा कि तू ये बांध के कूद। Saying कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये it makes up your mind when you're growing up. So that is what the show is about. कि आप अगर अभी भी उन घरों में पहुंचे जहाँ पे अभी भी लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, उनकी शादी की जा रही है और उनको लगता है कि ये फ्रीडम हमें, ये बड़ा पेट डायलॉग है, जो करना पति के साथ करना है ना। सो आई आस्क दिस क्वेश्चन एवरी टाइम इन माय शो एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन रेज देयर हैंड्स। तो अब मुझे पता है कि अभी तक चलता आ रहा है ना। सो मैं ये बात बोलती हूँ कि आधी से ज्यादा तो हम इसलिए शादियां कर लेती हैं क्योंकि हम ट्रिप पे ही नहीं गई हैं, तो हमें लगता है हनीमून के सारे किसी ट्रिप पे जाने तो मिलेगा, या पति के साथ भी, बिकॉज़ अदरवाइज तो जाने ही नहीं दे रहे हैं माँ बाप, ट्रिप पे ही नहीं जाने दे रहे हैं। अरे आप बिलीव नहीं करोगे, इतने लोग रोके कर लेते हैं कि फिर छुट्टी पे जाने को शायद मिल जाए, फिर पता चलता है ओ शिट, पहले तो मम्मी पापा ट्रिप पे नहीं जाने दे रहे हैं, फिर मैनेजर ट्रिप पे नहीं कॉन्स्टेंटली। मुझे लगता है कि आधी तो इसीलिए क्योंकि इनको लगता है कि पति हमारी आजादी की चाबी है और पति को लग रहा है हो गई शादी, गई मेरी आजादी, अब तो मैं रिस्पॉन्सिबल मैन हो जाऊंगा। और अब तो the whole mindset is so different. And now imagine these two people are going to get married maybe tomorrow, day after, and one is thinking कि आई आजादी, एक सोच रहा है गई आजादी। बॉम्ब, मुझे तो लगता है। But actually, this is so true. I've never thought of it from this sense of like the have you seen the boys there? What do the boys, लड़के के जो लड़के दोस्त होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये तो गया। कोई ये नहीं सोचता कि हमारे ग्रुप में एक नया मेंबर आने वाला है, या अब इसकी, अब हम 4 से हम लोग और एक जना, लाइक शी कुड बी फन, हम लोग मस्ती करेंगे, अब तो गया। एंड दे डोंट इवन इनवाइट कि आओ भाभी जी साथ में मस्ती करेंगे, बैठेंगे हम लोग। नो, भाभी जी आ गई, भैया गए। एवरीबडी थिंक्स ऑफ दैट वे, वेयर एज द गर्ल्स they think कि now the men will come and we'll have like a bigger group. The men don't want to go there. Men want their own fun. Apparently पता नहीं they are talking something जो औरतों के सामने की नहीं जा सकती। You know, this is my, with this same thought, like so many people, they want to talk about like I'm going on a bachelor's trip or a bachelorette trip. I am saying you go on any trip. Yeah. But my point is, why is it only timed around your wedding? तुम ऐसा क्या करने वाले हो उधर? If you're in a relationship and committed, तो तुम ideally I would want to believe, unless you're not in a monogamous relationship, तुम वैसे cheat तो नहीं करोगे ना, obviously. तो ऐसा तुम्हें उसी टाइम पे isn't it like a regular trip जो तुम वैसे भी ले सकते हो। हाँ, ये जो पूरा concept है ना कि आज singlehood enjoy कर लो। See, I think I've been dating this guy for 8-9 years now, तो मुझे तो लगता है हम साथ में ही जाएंगे, जो भी बैचलर बोल लो, बैचलरेट बोल लो। I would take a trip with my friends once a year anyway, तो अब उसमें क्या ही तुम ऐसा अलग कर लोगे। हाँ, honestly I have nothing to do anything, rather I have more fun with him, you know. But the conditioning is ना कि अब अभी कर लो जो भी करना है, इसके बाद तो नहीं होगा। Boys के लिए तो especially, for the boys, for the girls, and it's a very common notion ना कि बहुत सारी बातें लड़कियां समझेंगी नहीं। Girls are equally fun
एंड एक बार उनकी तुम बातें सुन लोगे तो तुम दहशत में चले जाओगे कि छी गंदी तुम्हें भी शर्म आ जाएगी, बिकॉज दे वी सीन एज मच एज वर्ल्ड यू सीन. ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें लगेगा फनी है और उसको नहीं लगेगा. शी इज जस्ट मोर, शी हैज मोर एम्पैथी. तो हो सकता है वो तुम्हें कभी बुली करने से रोक दे, है ना, ये करने से रोक दे विच यू आर थिंकिंग इज फन एंड नॉट वन मोर गुड पर्सपेक्टिव ओनली. ऐसा कुछ नहीं है कि गई आजादी और ये सब कुछ नहीं है. But I'm glad you don't think that way कि मतलब जब भी Oh, शादी no. होएगी तो ऐसे नहीं लगेगा कि गई आजादी. ना नॉट एट ऑल. मैं तो पहले ही माय तो फर्स्ट बैटल इज so when I started going around, I was to doing tests on him. कैसे बताओ थोड़ा educate the girls. What are Okay, these please, boys, tests? don't hate me. Okay, हाँ. so I think this girl who's always had more male friends. Okay, because I'm very like I'm not a damsel in distress since forever. So I generally don't like when I call my female friends and say कि can we meet, and when they say कि अरे यार मम्मी नहीं मानेंगी. See, मेरी मम्मी भी नहीं मानती. मैं अभी fight कर रही हूँ ना for. So it gets tiring. एक वक्त के बाद ना आप थक जाते हो ये सब से डील करते करते कि आप तो अपने दोस्तों के लिए सारी झगड़े लड़ रहे हो और वो आपके लिए लड़ रहे हैं. वो सिर्फ तभी लड़ रहे हैं जब कोई स्पेशल पर्सन इन पिक्चर है. तो मैं थक जाती हूँ ये सब करते करते ना कि यू कैन क्रॉस बाउंड्रीज फॉर योर बॉयफ्रेंड, your partner, and not me, while I would do that for you. So I get very tired of those kinds of friendships. Oh, I don't like those friendships. I've gotten very tired. So I've always had more comfort with male friends because just by default मेरा comfort ज़्यादा रहा है. तो and earlier when I've sort of gone around maybe on a date or something, so ये बड़ा constant problem होता है of men who are insecure. They can't bear this. उनको लगता है कि अगर हमारी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ है तो कुछ और ही होगा. The concept of friendship of a boy and a girl being a friend doesn't float around as much. But you do realize that a lot of men say कि हमने अपनी like female friends को भी अगर कुछ हो सकता था तो हाँ. But मैं भी नहीं agree करती. I think platonic friendship is very. It's not about what they want. It's about I am loyal to you or not. Correct. It's really not about उसको मुझसे क्या चाहिए. I also believe that there are many men in this world who actually just enjoy female friendship. हाँ, of course. There is platonic friendship. रिश्ते ढूंढने मिलते हो तो सारे तो वैसे भी सच्चे नहीं निकलते ना, तो सारी दोस्तियां भी सच्ची नहीं निकलेंगी. But it's a journey to experience. So whenever I would hang out with my male friends or and whenever we would be apart, so generally we were on normal calls talking. I would make sure that's a video call this time, okay, and see how he reacts. तो मैं ना बड़ा एज पे चलती थी क्योंकि एक दो बार जब आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है ना, आप थोड़े वैसे वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. तो मैं बड़ी एज पे थी कि आई वुड वेट बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एंगर एट माय होम. सो दिस वाज अ नो कि इफ आई हैव समबडी हु गेट्स एंग्री अ लॉट, नो. सो आई वुड जस्ट सी व्हाट ट्रिगर्स हिम. लाइक आप ऐसे तीली मारने की कोशिश करते हो ना, तो मैं चाहती थी कि मुझे पहले पता लग जाए. आई डोंट वांट टू गेट मैरिड एंड गेट सीरियस एंड डूब जाऊं प्रेम में और तब पता लगे कि इसको तो बहुत गुस्सा आता है. नहीं, फिर मेरे अंदर भी नहीं है किसी को यूं छोड़ देने की क्षमता. तो आई वुड ट्रिगर एंड आई वुड सी डजंट गेट एंग्री ओवर बिगेस्ट ऑफ द थिंग्स. छोटी किसी बात से कब गुस्सा करता है, जब आपस में गुस्सा भी नहीं करता, रूठ जाता है जब मैं कम टाइम देती हूँ. ही डजंट अंडरस्टैंड माय मी टाइम एट टाइम्स. बट वो सब बड़े ग्रीन फ्लैग बातें हैं, इन बातों पे रूठना कि आपको किसी को आपका वक्त चाहिए. बट जैसे कभी आप रात के 10 बज गए हैं, आप किसी दूसरे शहर में और कह रहे हैं चल यार ये करने चलते हैं, और अगले दिन उसका सुबह ऑफिस है, तो दो तरह के रिप्लाईज होते हैं ना कि तू पागल है क्या, कल मेरा ऑफिस है, या फिर चलो कल मेरा ऑफिस है अपन फिर कभी कर लेंगे. डजंट हैव टू से नो, लाइक चल. एंड देन मैं तो लेट उठूंगी ना. लाइक ऑल ऑफ दीज टू मेक श्योर कि उसको तुझे मुझ पे भरोसा है. मेरे दोस्त हैं, लड़के हैं, लड़कियां, तुझे है मेरे पे भरोसा. तू मुझे इतना लायक समझता है कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, या मुझे मैंसप्लेन करना है. तो मैं तो बहुत तिल्ली मारती हूँ कि what angers him. One time I went to such a length, I told him that I like somebody else. I've been feeling this way for a month now and I just wanted to see. And it doesn't get okay, or what do you want to do about it? I said I was joking. I just wanted to see that what is the length, because अभी तो आप जब डेट कर रहे हो तो ना लाइफ बहुत ईजी होती है. अभी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, लाइफ गेट्स टफर एंड टफर, तो गुस्सा भी जल्दी आता है. I just feel like वैसे भी the first few months of dating are zero predictor for future behavior. You are at your best behavior ना पहले 6-7 महीने. मैं तो वेट करती रही, मुझे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे लग रहा है ये हनीमून फेज जा क्यों नहीं रहा है. तो ये जाएगा तो मुझे झटका तो नहीं लगेगा. बट I touch wood, very like I feel very lucky
but I have done full तिली मारो test. बट ठीक है यार, मतलब you know you've got to have your bases covered. Yes. जिसको जैसे ठीक लगे, आप अपने experiences की वजह से ही feel करते हो ना, however you feel. So you wanted to ensure that there were certain qualities he didn't have. तो करो टेस्ट, मैं तो कहती हूँ जिसको. ऐसा नहीं है ना कि मैं मतलब मैं भी कोई बहुत चलता फिरता, कैसे बोलूं, एडजस्टिंग बहुत ही हाँ जी करने वाली नहीं हूँ ना. मुझे पता है कि मैं कितनी जिद्दी अड़ियल हूँ. तो it's not easy to be with a rebel, brown, elder daughter. It's not easy to be with someone who's famous also a little bit. That is so very later यार. हाँ, फिर जब मैं famous हुई तब भी मुझे लगता था. On some days I earn more. तब भी मुझे लगता था कि इस बात पे झगड़ा हो सकता है क्या, इस बात पे झगड़ा हो सकता है. काफी होता है वैसे. हाँ, तो क्योंकि conventionally होता है कि अब you know, now that maybe I've made more money last year, or will that be a problem? Will that make him insecure? Nothing makes him insecure, which is fabulous. चलो मिलेंगे फिर साथ में. इतनी आपने तारीफ करी तो फिर आपके पार्टनर को भी मिलना पड़ेगा. He can't do this podcast. One thing that he can't do is speak. हाँ, नहीं हम डिनर पे चलेंगे. That I do. Done deal. Dinner. हम डिनर पे चलेंगे. वो उसने पता है मुझे आज क्या बोल के भेजा आपसे मिलने से पहले. He is a very business interested person. तो कहना पूछ के आना कि कौन सा बिल्डिंग better to invest in. आपको पता है मैंने रजत की मैं ये हमारी वॉइस नोट सारी यही है, क्योंकि वो कहीं मुझे रजत के पास बहुत पैसा है ना. इसको राजन जी लाइक बानी जी बताइए यहाँ कर सकते हैं क्या, तो फिर मैं उनको बताऊंगी क्या होती है रजत को ही पता है. अच्छा, बट मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग विद योर पार्टनर? लाइक इज इट अ शेयर्ड वैल्यू सिस्टम, इज इट शेयर्ड एक्टिविटीज, क्या आपको पसंद क्या है करना? आई थिंक घूमना, खाना और बातें करना, 3. और बातें आप ही करते हो? नहीं, वो भी करता है. वो हम उसके लिए एक लाइन यूज करते हैं कि he takes 3 to 4 business days to open up. तो जब वो खुल जाता है तो मैं चुप रहती हूँ और वो ही बोलता है. But until then I have to cope up. और खाने के लिए आप कहाँ जाते हो? हम लोग पंजाबी है ना दोनों. खाना हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है. It's love on a plate, you know. छोले भटूरे, हमारे रजौरी के छोले भटूरे से लेके the 5 stars and the 7 stars हम हर जगह जाते हैं. We need it. छोले भटूरे तो पंजाबी का लव होता है. खून में होता है ना हमारे तो. बड़े टाइम से नहीं खाया. मेरा कहाँ के फेवरेट आपके दिल्ली के? यार मेरे ना घर में बहुत अच्छे बनते हैं. कब बुला रहे हो आप हमें? हाँ पक्का. Actually next time there's छोले भटूरे at home, you come over. Done deal. And we will have छोले भटूरे together. My nani makes amazing छोले भटूरे. वाह. उन्हीं की, and you know they are like lighter, they're not as doughy, so they're just easier on the tummy, but so good यार. हमारा वो वाला होता है कि वो दोई वाले छोले भटूरे. क्या नागपाल है फेमस. देन गोपाल्स था, मतलब मैं रोहिणी जब रहती थी तो देयर वाज अ गोपाल्स जो अभी भी है, फैंटास्टिक. देन देयर इज वन हमारे घर के पास है, मैं नाम भूल गई. उसके ऊपर अच्छा सा ऐसे थोड़ा चाट मसाला डालो. अरे आई लाइक द अचार दैट कम्स विद इट. बिग अचार फैनेटिक. चलो फिर मैं नेक्स्ट समर आपको भेजूंगी. मसाले, चटोरी बनती है. My nanny's love language is making अचार for people. Oh please send डब्बा that my home. I will. और मैं इतनी अचार की भूखी हूँ कि मैंने खुद डालना सीख लिया है. मैं मांग मांग के थक गई थी यार. चलो नहीं, एक बैच मेरे से next summer is a done deal. Done deal. That is like a promise. The छोले भटूरे and the अचार. ठीक है. अच्छा, एक one thing that I really wanted to of course talk to you about was you have spoken about, अभी तो we're talking about your love story and what your हम parents के उससे आ गए love में, but आपने एक बात कही थी about, actually 2 बातें मुझे discuss करनी because I found them very profound. जी. One, you spoke about one-sided love. जी. थोड़ा इस पे elaborate करें, क्योंकि मेरा एक opinion है कि मैं limerence as a concept को बिल्कुल support नहीं करती. ठीक है ना, कि आप I agree with you on the fact कि love to me is an emotion that is felt by both parties. Like limerence is felt by one person. ठीक है. तो मुझे ये जो हम glorification of one sided love है ना, वो मुझे बिल्कुल भाता नहीं है. मैं भी इस इमोशन की कोई फैन नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट. मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार है, जैसे अगर हम इनको लफ्जों में बांट दें, प्यार और जुनून को अगर मैं 2 लफ्ज समझूं और कहूँ कि इनको जो कंबाइंड करके बनता है, इश्क कह लें, मोहब्बत कह लें, या जो भी इसका एक वर्जन कह लें जिसमें पैशन भी है,
love and passion, when they come together, they become what you do with one person, which is why there is a partner. Okay, आप प्रेम जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोगमी है वो यही तो है कि आप, क्योंकि आपके पास, कैसे बोलूं, प्रेम का आपको इनफाइनाइट कोटा मिलता है, आपके अंदर इतना है कि आप जितने लोगों से, पूरी दुनिया से आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कितने भले काम करते हैं, एंड दे फॉल लाइक दे create a relationship of love with everybody. You Yeah. can do it with your family, your job, people you work with, so and so and so, Yeah. infinite. जुनून का आपके पास एक बड़ा लिमिटेड कोटा होता है, आप हर किसी से एक जुनूनी रिश्ता नहीं बना सकते। करेक्ट। इसलिए आप चुनते हैं कि या तो आपके सपनों को या एक इंसान को, बड़ा दोनों ही नहीं हो लिमिटेड, सकता, कुछ दोनों किया भी हो कुछ काम सकता है। किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हाँ, भी होता है। मैं कह रही हूँ कि आप इन दो चीजों के अंदर ये Correct. सबसे ज्यादा देखेंगे कि या तो लोग अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को, मनी मेकिंग, बिजनेस, इस सब को लेके बहुत पैशनेट होते हैं, या अपने पार्टनर को, और बोथ, Yeah. ईदर और। हाउएवर प्रेम जो है वो बड़ा दो तरफा भाव लगता है मुझे। एक तरफा मैं सिर्फ तभी मानूंगी कि आप इसको कहें कि मुझे एक तरफा मोहब्बत है, जब आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो सामने वाले कि आपसे करे, एंड यूर फॉर योर लाइफ ओके विद द अदर पर्सन नॉट फॉलिंग इन लव विद यू, देन यू, आप डंके की चोट पे कहें कि हमें एक तरफा प्यार है। अगर आप चाहते हैं ना कि दूसरे को भी आपसे हो जाए, तो वो चाहत है, वो मोहब्बत नहीं है। टू differentiate between the two. Yeah, because I just feel that at least in movies like Ranjana, हाँ, this depiction of this lover boy जो मतलब कोने से देख के he's obsessing over this girl, yeah, and he's going to whatever measures he can to kind of get her love or whatever, and वो नहीं कर रही feel, and she comes out looking like the the bad मुझे ऐसा person, लगता है तो वो मुझे बिल्कुल नहीं नहीं, पसंद। जुनून को ना रोमांटिसाइज करना बहुत ही एक, टू लुक एट जुनून इज वेरी मोटिवेटिंग, जैसे भाग मिल्खा भाग, और जो जितनी स्पोर्ट्स मूवीज आप देखते हैं, which is very passion, मेरे को लगता है humans just enjoy passion as an emotion. It is very motivating, it is very fulfilling, उसमें प्यार भी है, उसमें motivation भी है, उसमें enthusiasm भी है, it makes you feel very fulfilled even looking at it, which is why movies like Ranjana, sports movies, they do very well, because the emotion to look at motivates you. Yeah. However, it shouldn't sort of drive you to put your scooter in the Ganga Maiya. हाँ, most certainly हाँ, not. तो वही है ना कि जुनून जब हद पार करेगा तो वो अच्छी चीजें तो, बहुत नहीं। अच्छी चीजें तो हमेशा नहीं करेगा। Yeah. हाँ, वो क्या कहते हैं कि मेरी मम्मी बचपन में बोलती होती थी हम लोगों को कि एक्सट्रीम ऑफ एनी इमोशन इज बैड। क्यों टीचर्स, जब हम जिद पे अड़ जाते थे ना कि ये लेना ही लेना, और धाड़े मार मार कर रोते थे, तो मेरी मम्मी बोलती थी एक्सट्रीम ऑफ एवरी इमोशन इज बैड। हाँ, my mom also says कि पेंडुलम जितना इधर गया है उधर भी उतना ही जाएगा। सच तो just be like centered, stable. Aligned रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा सेंटर किधर है, ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ योर बॉडी। तो मुझे लगता है कि, और बहुत ही सुंदर फीलिंग होती है यार कि आप जिससे प्रेम करते हैं, आप उससे आपको मिले भी, तो क्यों सिर्फ जीवन भर एक तरफा के चक्कर में पड़े रहना। और आपको कभी भी एक शख्स पसंद नहीं आता है, दिस इज अ थॉट कि आप किसी के ख्याल से मोहब्बत करते हैं, जब तक आप उनके साथ रहने नहीं लगते, जब तक आप उनके साथ जीवन बिताना शुरू नहीं करते ना, यू आर ओनली इन द लव विद द थॉट ऑफ दैट पर्सन दैट यू हैव, एंड जस्ट फॉर अ थॉट, अ ख्याल, व्हाई स्पॉइल दिस ब्यूटीफुल लाइफ? No, and absolutely agree, and I also feel like it is our love that makes people beautiful. Yes, that makes them special. 100%. It's like तुम खास हो क्योंकि तुम मेरे पास हो। 100%. अब या तुम खास हो क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, अब जो मुझे प्यार नहीं तो तुम भी खास नहीं। Our love makes people beautiful. Of course, it's your notion and it's your image of somebody in your head. Yeah. बिल्कुल। That to me, and the other thought that I really resonated with was when you said that there are 3 things that you will not accept in love. And tell us those 3 things because it's a very profound thought. कि 3 चीजें हैं जो मुझे मोहब्बत के नाम पर देनी नहीं है किसी को। एक मेरा आत्मसम्मान, एक मेरे सपने, और एक मेरा हक। So important and so succinctly put. मतलब तीनों चीजें, आत्मसम्मान, एक हक और एक मेरे सपने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अपने होते हैं, बाकी चीजें बांटी जा सकती हैं। जैसे मैंने ये सीखा है विद सीन द मैरिजेस एंड द रिलेशनशिप्स अराउंड, कि जैसे बचपन में ना मेरे घर में मान लो कि कोई चीज आती थी, तो माय ब्रदर आई ऑलवेज हैड अ बेटर एपेटाइट देन मी। तो जैसे चॉकलेट आई तो मैं थोड़ी खा के रख दूंगी, और मेरी आदत है थोड़ी थोड़ी करके खाने की।
भाई क्या करेगा, वो खा लेगा और फिर कहेगा देना। विद मैगी ऑल्सो व्हेन यू विल मेक, हम ऐसे साइंटिफिकली आधी आधी बांट लेते थे, उसकी हमेशा पहले खत्म हो जाती थी और मैं लुत्फ उठा उठा के खा रही हूँ, तो जब वो खत्म कर लेगा तो मुझे देखेगा। तो समटाइम्स इन फ्रंट ऑफ आवर मदर्स वी वुड फाइट ओवर टॉफीज। जब वो बराबर बांट देती थी और वो मान लो मुझसे और मांग लेता था और मैं देने लगती थी, तो मेरी मम्मी कहती थी कि नहीं मैं उसको और दिला दूंगी। लाइक यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर एवरी लिटिल थिंग। एंड आई रियलाइज कि जो मैंने सीखा ना कि एडजस्ट करना बहुत खूबसूरत इमोशन होता है, कॉम्प्रोमाइज करना उतना ही नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर राइट नाउ 50 लोग इस कमरे में आ जाएं और एक और को आना है और आप मुझसे कहें ना आप थोड़ी आगे हो ना, और इस कमरे में मान लो कुछ तो मिलने वाला है जिस वजह से भीड़ लग रही है, और आप कहीं थोड़ी आगे हो ना और मैं हो जाऊं, वो एडजस्टमेंट हुई और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो हम सबको मिलने वाला है उस ऊपर वाले से, उसके अंदर एक और आ गया। और आप मुझसे कहीं ना आप कमरे से बाहर जाना, एक और इंसान आना चाहता है, वो हुआ कॉम्प्रोमाइज। मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं तैयार हूँ, कुछ कर लूंगी मैं। तो बांटने में मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे बहुत खुशी है। So the difference between adjustment and compromise when you're in a relationship, when you're in a job, to understand the difference is very important all your life. So it's okay to adjust. It's beautiful to adjust for somebody. It's an expression of grow love. as a person Yeah, also. it's an expression of love when you adjust for somebody. You know, there's other person values it, and if you're compromising every time, it doesn't work. Yeah, very well said. What thought can I have after this? Oh. I will ask you our last question that I ask everyone before a game. We will play a game at the end, but the question that I ask all the people, the incredible people that I get the opportunity to meet is how do they unwind after us? I know पूरे February you're traveling. तो मतलब जब इतने मेहम से आपको टाइम मिलता है तो आप क्या करते हो to relax and just like you know? मैं कुछ नहीं करती। I love the feeling of doing nothing. Okay, yeah, I get watching a movie, reading a book, or maybe just sleeping. मेरा तो बेस्ट अनवाइंड मैकेनिज्म है कि मैं सो जाती हूँ। एंड एवरीबडी इन माय टीम दे हेट एंड दे एनवी, हेट इज नॉट द राइट वर्ड, दे एनवी कि मैं कैसे कहीं पे भी सो सकती हूँ। मैं भी ये बहुत एनवी करती हूँ। मुझे उन सब मुझे जलन है उन सब लोगों से जो कहीं पे भी कैसे भी सो सकते हैं। I struggle to sleep. I need my pillow. I sleep with earplugs, with a sleep मतलब with an eye mask. I need temperature कुछ बस बहुत। मैं तो कैसे हो एडजस्ट सी होके मैं भी यहाँ पे, अगर आप बोलोगे ना इस कुर्सी पे सोना है, मैं 15 मिनट दो मैं सोती मिलूंगी आपको। तो मैं थोड़ा मुझे भी दे दो यार। ऐसे थोड़ा सा ये वाला मैजिक I can do. But that's amazing. अच्छा, हम आपसे एक गेम खेलेंगे शॉर्ट एंड स्वीट. इट्स कॉल्ड व्हाट्स द कैच. तो मैं आपको, क्योंकि हमने प्यार की इतनी बातें करी और आप बहुत मोहब्बत पे लिखते भी हो, दैट्स योर sort of, you know, one of the things you like writing about. So I'm going to give you scenarios. I'm going to give you like a description of a situation and then you tell me कि इसमें क्या कैच लग रहा है आपको. ठीक है. तो सोचो there's a guy, ठीक है, and he's being really nice to his girlfriend. और वो 3-4 महीने से डेट कर रहे हैं. She can't complain. But he's not introducing her to his friends or to his family. What's the catch? The catch could be that he's being nice to a lot of other women at the well. same time. Or he's not sure and maybe he's just nice. तो जो करना थोड़ा रहना चाहिए. या. ठीक है. अच्छा, एक ये है कि आप सोचो कि वो, जैसे आपने बोला कि यू हैव अ लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स, सो देयर इज अ गर्ल लाइक यू हु आल्सो हैज अ लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स, और वो बोलता है कि यू नो अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेल फ्रेंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, बट मतलब तुम लेट नहीं घूम सकते उनके साथ, तो say bye bye, go home. मतलब that's not trusting. No, not at all. Say bye bye, stop dating, because anybody who tells you how to do is always going to treat you like a child. अब वो तुमको ये नहीं कह रहा है कि घर जाओ, वो तुमको ये कह रहा है कि तुम ना समझो और तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है. So if you are okay with that thought for yourself, enjoy your marriage or relationship, I would leave. कोई बोल रहा है कि मुझे I love ambitious women. But when she's working long hours or when she has to travel for work, let's say she has a schedule like yours, what's the catch there? Like, somebody may obviously saying, oh, you know, I really want an ambitious person, but वो ऐसे subtly आपको needle कर रहे हैं कि इतना लंबा क्यों काम कर रही हो?
sadly दो चीजें हैं जैसे I'll give you a very personal example. I'm very ambitious, okay, and Ayush is ambitious का am only, vicious नहीं है उसको वो थोड़ा उसको important काम हो जाए वो he likes to have fun, he likes to enjoy life. So sometimes I really get too much for him, but he's never told me कि he does complain that Naya, there's no time for me on days, and then I do take out like I say sorry, apologize, and then I figure my shit out and maybe take a trip together or maybe just come back home. That's fair. Yeah, that's fair. That's reasonable. Fair. That's कि आप कोई आपसे आपका वक्त किस लिए मांग रहा है, that's the catch. Very well said. That's good. Ki what are they asking that time for? Is it out of insecurity or is it just because they want to spend time with you? For example, insecurity, or they want you to sort of do your jobs at home and not like figure out both things. जैसे मैं अपनी दोस्तों से कहती हूँ कि होता क्या है ना, जब लड़कियां जो हमारी मदर्स हैं, जब मैं देखती हूँ कि जब वो काम नहीं कर रही होती, अपना पैसा नहीं कमा रही होती, तो उनको लगता है कि ये घर हमें ही संभालना है. एक तो हम कमा नहीं रहे, ऊपर से हम हेल्प्स नहीं हायर कर सकते बहुत ज्यादा. मतलब ये दिस कांट बी आवर प्रिविलेज. मैं कहना चाहती हूँ कि देखो वो लोग कम इसलिए कमा रहे हैं बिकॉज वो जो क्या बोलते हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड जो आप जो हैं, हम लोग जो हम स्किल्ड लेबर हैं, पैसा कैसे डिफाइन होता है इसी बेसिस पे ना, विच इज वाई द फोर्स टू एजुकेशन इज देयर. आप अगर पढ़ लिख ली हैं, you can always, number one, make better money out of your time. Yeah. So do not, वो again अपनी worth को पैसे से ना जोड़े. It's वैसा वाला है. The catch is what, कि आप किस लिए किसको चाहिए, वक्त के लिए, प्रेम बांटने के लिए या किस तरह के काम के लिए, वो आप figure out करें. Fair enough. And the last is that the guy says that I'm like really open-minded. And चलो feminist word ही बोल देते हैं जो आप equalist feminist जो भी, but when it comes to like his family, वो कभी कोई opinion नहीं share करता या stand नहीं लेता, तो what's the catch there? For me, हाँ, मतलब किसी भी लड़की के लिए, हाँ, मतलब कि वो family के सामने कुछ नहीं बोलता, but आपको बोल रहा है बहुत open minded है, तो what's the catch? One catch could be he's just trying to balance between the two. Like या तो वो तुमको भी आके बोल रहा होगी चल ना तू भी मत बोल, ignore. Yeah. So that's fair. The other catch is that he's lying could be a big lie. So always two catches. Always two catches. Two catches. Always two catches. One, देखो हमेशा हर सिनेरियो के वो तो होते ही है ना. Yeah. दो पहलू तो होते ही हैं. कुछ लोगों को जैसे I come from a very Ayush's POV I've seen is he's very shy. तो वो ऐसा नहीं है, वो मुझे भी नहीं बोलेगा. जैसे अगर उसको कुछ बोलना है और उसको कोई बात लग गई है तो वो 4 दिन लगेंगे उसको निकलने से. आप चॉक एंड चीज से लगते हो मुझे. आप और आपका पार्टनर. हाँ, थोड़े क्यूट. थोड़े I like to have fun. Like he's very funny and he likes to enjoy life, so he hardly gets you in trouble. But the good part is that it's actually the family. Can you speak for yourself? Why does he have to speak for you? Or if you can speak for yourself, it's very scenario based. True. कि या तो आपको बोलना अलाउड नहीं है तो आपको चाहिए. पहली बात तो जहाँ आपको बोलना अलाउड ही नहीं है और आप वहाँ पे फंस गए हो तो आप गलत फंस गए हो. I agree. So if you can speak for yourself, there's no catch. There is no catch. There's no catch. Yeah, you should be able to speak for yourself so that there is no catch. Yeah. कि मुझे आदत ही नहीं है कि कोई मेरे लिए बोले. Yeah. मैं खुद ही अक्सर काफी बोल लेती हूँ. Same. I don't know if that is a likable quality or not, but it is what it is. कौन डिसाइड करता है क्या likable? It's my DNA. अभी क्या करें? उसको तो नहीं चेंज कर सकते. चलो अभी हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए जो हम आपको देंगे. And I am going to. हर रैपिड फायर के बाद एक गिफ्ट की उम्मीद तो होती है. And I'm going to obviously take you up on our 3 people dinner. Oh, the chole done. bhature and of course and I have one question to ask you. हाँ बता. All these scenarios, where are they coming from? My team. I hope they're सारी not लड़कियों personal. की टीम है. नहीं देखो मेरे साथ वो सब नहीं हो सकता क्योंकि I'm little bit scary. Good one. But I don't think you get away with too much. No, I'm not scary like that, but like I'm quite no nonsense. Yeah. So I don't give too much space I for relate to that. that. ऐसे होगा नहीं. होता नहीं है. होता भी है तो you catch it immediately. Yeah, and you leave. You walk out of that. Yeah. Walk out or just you take enough time to know that whether this is for you or not. Learn, women, girls. This is for you. Thank you.
enjoy So your many catches. So, Bichare, this is like Surya Kumar ka World Cup. But hopefully you'll enjoy cooking. Yes. Both of you in the kitchen Yes. together. Yeah. Sprinkling some joy. Yes. And 100%. I will see you super soon. I hope you had a good time. And I had a lovely time. I've really enjoyed chatting with you. And I'm gonna go back to the momos now. Yes. Dim sums. Dim sums. Dim sums. Dim sums. Okay. Thanks, Ayab. Thank you so much. Okay.